Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will start a new chapter which dealt with the concept of stopple. Section 121 to section 123 we will discuss in this particular lecture. तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक स्टॉपल। कौन से सिचुएशन में स्टॉपल लागू होगा और कब स्टॉपल लागू नहीं होगा, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिएगा, ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। स्टॉपल सेक्शन 121 to 123। First of all, we will discuss introduction. Doctrine of estoppel is that provision which prohibits a person from giving false evidence by preventing them from making contradictory statement in a court of law. Suppose if the person previously made any statement, then the principle of estoppel will prevent a person from making a contradictory statement. अगर कोई पर्सन पहले कोई स्टेटमेंट देता है तो प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल उसको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, मतलब पहले जो स्टेटमेंट दिया उससे ठीक उलट स्टेटमेंट देने से रोकता है। द पर्सन विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम मेकिंग अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। This doctrine holds a person accountable for false representation made by him either through his words or through his conduct. Suppose if a person who made a false representation, then the principle of estoppel held that particular person accountable for his false representation by applying the principle of estoppel. अगर कोई पर्सन false representation करता है, जिस पर भरोसा रख के कोई पर्सन एक्ट करता है, तो उस सिचुएशन में जिस पर्सन ने false representation किया उसके लिए उसको प्रिंसिपल ऑफ estoppel अकाउंटेबल पकड़ता है, मतलब उसको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देने से मना करेगा, मतलब उसको रोकेगा। देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डॉक्ट्रिन इज टू अवॉइड द कमिशन ऑफ फ्रॉड बाय वन पर्सन अगेंस्ट अनदर पर्सन। सो टू अवॉइड द फ्रॉड, this particular principle of estoppel comes into existence. Suppose if one person is doing a fraud against the another person by his representation, then later on he cannot make a contradictory statement, the principle of estoppel will be applicable and his contradictory statement will not be relevant. तो एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन से एक रिप्रेजेंटेशन देके, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देके अगर फ्रॉड करता है तो प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल बाद में उसको अपना स्टेटमेंट पलटने नहीं देगा। ही विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम मेकिंग अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। वो स्टॉप्ड मीन्स स्टॉप्ड, which means a person is not allowed or permitted to speak contrary to his earlier statement. पहले जो स्टेटमेंट दिया था उससे कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट वो पर्सन नहीं दे सकता है। देखिए, सेक्शन 121 स्टॉपल डील्स विथ when a person by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted to another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing. Suppose when a person by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted to another person to believe a things to be true or to act upon such a belief, then under such a circumstances he himself and his representative will be prevented from making a contradictory statement. तो पर्सन क्या है, देखिए कि सेक्शन 121 ये कहता है कि कोई पर्सन अपने डिक्लेरेशन से या अपने एक्ट से या कोई ओमिशन से किसी पर्सन को ऐसा भरोसा दिलाता है, इंटेंशनली उसको कुछ ऐसा करता है कि जिससे सामने वाला पर्सन भरोसा करके उसके ऊपर भरोसा करके एक्ट करे कुछ। सपोज मैंने कुछ रिप्रेजेंटेशन किया जिसके चलते सामने वाले पर्सन ने मेरे पे भरोसा करके एक्ट किया, बाद में चल के मैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। मतलब मैंने कोई चीज कहा उससे,
मुझे उसी चीज पर कायम रहना पड़ेगा। अगर मैं उससे कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट दूंगा तो आई विल बी स्टॉप फ्रॉम डूइंग सो, तो मुझे स्टॉप कर दिया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल लागू होगा। मैंने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बेचा किसी पर्सन को कि ये कहकर के वो प्रोडक्ट मेरा है। अब सामने वाले पर्सन ने वो प्रोडक्ट परचेज किया, कुछ एडवांस मुझे दिया, बाद में चल के मैं ये नहीं कह सकता कि उस प्रोडक्ट का ओनर मैं नहीं हूं, इसलिए मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। पहले मैंने जो किया था, जो एक्ट किया था, उस पर सामने वाले पर्सन ने भरोसा किया, तो मैं लायबल रहूंगा। बाद में चल के मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता हूं। प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल विल बी एप्लीकेबल अंडर सच ए सर्कमस्टांसेस। देखिए, देयर इज एग्जांपल, इफ प्रीतम इज एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी एक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रीतम एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एम्प्लॉय है, बट इन अ कोर्ट ही डिनाइज टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी। बट कोर्ट में जब कोई केस चला तो कोर्ट में प्रीतम ने ये कहा कि आई एम नॉट द एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, मिस्टर एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, ये कोर्ट में कहा प्रीतम ने। लेटर ऑन he could not claim the salaries and emoluments from that company। अब कोर्ट में उसने क्योंकि कहा था कि मैं एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं, तो बाद में चल के वो कंपनी से सैलरी क्लेम नहीं कर सकता है। he will be stopped from doing so, क्योंकि कंपनी के सामने उसने कहा कि मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, और जब एम्प्लॉय है ही नहीं तो सैलरी किस बात की। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जा रहा है, एक तरफ मैं एम्प्लॉय नहीं हूं बोल रहा हूं, दूसरी तरफ सैलरी क्लेम कर रहा है। दीज टू स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी। तो दूसरा जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है वो करने से प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल उसको रोकेगा। देखिए, दूसरा एक एग्जांपल है, नरेश वॉज अ टेनेंट इन द हाउस ऑफ राम। नरेश राम के घर में टेनेंट है। नरेश falsely representing to Paul that he had a transferable right over the property। पर नरेश ने पॉल को falsely represent किया और उसने ये कहा कि जो घर राम का है, जिसमें टेनेंट था नरेश ने ये कहा कि मेरे उसमें ट्रांसफरेबल राइट है, और उसने वो प्रॉपर्टी पॉल को ट्रांसफर किया। एंड देयर आफ्टर ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी टू पॉल, वो पॉल को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा था। Later on, cannot claim that he had not transferable interest in the property. He would be stopped from doing so under the doctrine of estoppel. Later on, Naresh cannot make a statement that he is having no right of transfer. बाद में चल के नरेश ये नहीं कह सकता है कि मेरा उस प्रॉपर्टी में ट्रांसफरेबल राइट नहीं है। अगर वो ऐसा कहेगा तो प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल उसको रोकेगा, क्योंकि पहले उसने क्या कहा था कि मेरे पास ट्रांसफरेबल राइट है, उसी स्टेटमेंट पर उसको कायम रहना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देने से उसको रोकेगा। अब देखिए, कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी है। दूसरा, द रिप्रेजेंटेशन मेड मस्ट बी एज टू फैक्ट एंड नॉट एज टू द लॉ। रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट होना चाहिए, लॉ नहीं। मैं अगर किसी पर्सन को कहूंगा कि ऐसा कोई लॉ है ही नहीं और बाद में मैं कहूंगा ऐसा लॉ है, तो प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल लागू नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल लागू होता है किसी फैक्ट को। मैंने कुछ फैक्ट पहले बोला, बाद में उससे कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट कर रहा हूं, तो प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल लागू होगा, अदरवाइज नॉट। The representation must be made as to an existing fact। रिप्रेजेंटेशन किसके फैक्ट से रिलेटेड होना? एग्जिस्टिंग फैक्ट। फ्यूचर फैक्ट से रिलेटेड अगर कोई रिप्रेजेंटेशन देता होगा तो प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल विल नॉट बी एप्लीकेबल। The representation must be made in a manner which makes the other person believe that it is true। रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को उसके रिप्रेजेंटेशन पे भरोसा है, तभी प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल लागू होगा। द पर्सन्स टू हुम द रिप्रेजेंटेशन इज बीइंग मेड मस्ट एक्ट अपॉन दैट बिलीफ। और जिस पर्सन को रिप्रेजेंटेशन किया गया उसने उस बिलीफ पे एक्ट करना चाहिए जो रिप्रेजेंटेशन उसने दिया था। And last one is the persons to whom the representation would be made should suffer a loss by such representation। तो जिसको रिप्रेजेंटेशन दिया गया था वो बिलीव जो उसने किया उससे उसको लॉस होना जरूरी है, तब स्टॉपल लागू होगा, अदरवाइज नॉट। सेक्शन 122 डील्स विद स्टॉपल ऑफ टेनेंट एंड ऑफ अ लाइसेंस ऑफ अ पर्सन इन पोजीशन। सेक्शन 122 प्रिवेंट्स एंड डिसेबल द टेनेंट फ्रॉम डिनाइंग द टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड एट द बिगिनिंग। सपोज if the tenant, there is a relationship between tenant and landlord, and after a lapse of a certain time, if the tenant is denying the title of landlord from the beginning, then he will be stopped from doing so। अगर टेनेंट है और टेनेंट एक लैंडलॉर्ड के पास कुछ सालों से रह रहा है, अब कुछ साल रहने के बाद वो टेनेंट लैंडलॉर्ड के टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता है।
क्योंकि जब उसने टेनेंसी एक्सेप्ट किया इसका मतलब उसका टाइटल भी उसको एक्सेप्ट था। अब उससे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बाद में नहीं करेगा, उसके टाइटल को वो चैलेंज नहीं कर सकता है, और अगर चैलेंज करेगा तो स्टॉपल लागू होगा, वो चैलेंज नहीं कर सकता है। नो टेनेंट इन पोजीशन शैल बी परमिटेड टू चैलेंज और क्वेश्चन द टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ टेनेंसी। लैंडलॉर्ड के टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता कोई टेनेंट। एंड नो पर्सन who came upon any immovable property by the license of the person in possession thereof shall be permitted to deny that such person had a title at the time when the license was given. Suppose मैं अगर किसी प्रॉपर्टी पे इंटर होता हूं और वो इंटर होने का मेरे पास लाइसेंस था, और वो लाइसेंस मुझे किसने दिया? उस प्रॉपर्टी के ओनर ने, और वो लाइसेंस के चलते मैं इंटर हुआ वहां पर। बाद में चल के मैं ये चैलेंज नहीं कर सकता, ये डिनाई नहीं कर सकता कि उस पर्सन के पास अथॉरिटी ही नहीं थी लाइसेंस इशू करने की, क्योंकि अगर अथॉरिटी नहीं थी तो शुरुआत में मैंने वो लाइसेंस एक्सेप्ट कैसा किया? तो मैंने लाइसेंस एक्सेप्ट किया, मैंने एंट्री किया, अब मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं उसके टाइटल को, उसके अथॉरिटी को, ये कह के कि उसकी अथॉरिटी थी नहीं लाइसेंस इशू करने की। Thus, no licensee shall be permitted to question or challenge the grant or license at the time of granting the license। कि वो जब लाइसेंस ग्रांट कर रहा था उसके पास अथॉरिटी ही नहीं थी, मैं ये चैलेंज नहीं कर सकता हूं क्योंकि उसने लाइसेंस दिया था, उसके चलते मैं उसके प्रीमाइसेस पर एंटर हुआ। तो ये सेक्शन 122 है। देखिए बिलास कुमार वर्सेस देशराज रंजीत सिंह। In this case, it has been held that a tenant who has been let into possession cannot deny his landlord's title, however defective it may be, so long as he continues to be a tenant and has not surrendered possession to the landlord। एक बार टेनेंट ने टेनेंसी का एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया, उसके बाद वो लैंडलॉर्ड के टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता, कितना भी डिफेक्टिव टाइटल रहने दो, जब तक वो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड के टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता। चैलेंज करेगा, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल विल बी अप्लीकेबल। द टेनेंट एडमिटिंग द टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड पेइंग हिम रेंट थ्रू आउट कैन नॉट सब्सिक्वेंटली डिनाई हिज टाइटल। टेनेंट ने लैंडलॉर्ड का टाइटल एक्सेप्ट किया, उसको किराया दे रहा है मंथली, बाद में चल के वो उसके टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता है। सेक्शन 123 स्टॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी। No acceptor of a bill of exchange shall be permitted to deny that the drawer had authority of draw such bill or to disendorse it। अगर suppose if I accepted a bill of exchange, later on I cannot challenge or I cannot deny that particular person who draw that particular bill of exchange was having no authority to draw, and the person who endorsed the bill of exchange was having no authority to endorse that bill of exchange। अगर मैंने bill of exchange एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद में चल के मैं ये नहीं कह सकता कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर ने ड्रॉ किया है उसको अथॉरिटी ही नहीं थी ड्रॉ करने की, या जो बिल ऑफ एक्सचेंज किसी पर्सन ने इंडोर्स किया है उस पर्सन को इंडोर्स करने की अथॉरिटी ही नहीं थी, बाद में चल के मैं नहीं चैलेंज कर सकता हूं क्योंकि मैंने वो बिल ऑफ एक्सचेंज ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका हूं। एक्सेप्ट करते वक्त मैं चैलेंज कर सकता था, लेकिन एक बार मैंने एक्सेप्ट कर दिया, उसके बाद में उसके ड्रॉवर को अथॉरिटी नहीं थी या जिसने इंडोर्स किया उसको अथॉरिटी नहीं थी, ये कहकर मैं चैलेंज नहीं कर सकता हूं। नॉर शैल एनी बेली और लाइसेंसी बी परमिटेड टू डिनाई दैट हिज बेलर और लाइसेंसर हैड एट द टाइम व्हेन द बेलमेट और लाइसेंस कमेंस्ड authority to make such bailment or grant such license। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में बेली ये नहीं कह सकता कि बेलर के पास अथॉरिटी ही नहीं थी वो प्रॉपर्टी को बेल करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने टीवी रिपेयर करने के लिए डाला किसी रिपेयर शॉप पर, तो रिपेयर शॉप वाला बेली हो गया, मैं बेलर हो गया। बाद में चल के रिपेयर शॉप वाला ये नहीं कह सकता कि मेरी अथॉरिटी ही नहीं थी उस प्रॉपर्टी पे, मेरा टाइटल ही नहीं था उस प्रॉपर्टी पे। अगर टाइटल नहीं था तो पहले उसने वो टीवी एक्सेप्ट कैसा किया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में बेली एक बार अगर वो प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करता है तो बेलर के टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता। सेम सिचुएशन में लाइसेंसी भी लाइसेंसर के टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता, ये कह करके कि लाइसेंसर के पास टाइटल ही नहीं था मुझे लाइसेंस इशू करने का। एक्सप्लेनेशन है, देखिए, द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मे डिनाई दैट द बिल वाज रियली ड्रॉन बाय द पर्सन बाय हुम इट प्रपोज्ड टू हैव बीन ड्रॉन, बट एक्सप्लेनेशन में ये बोले हुआ है कि एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज चैलेंज कर सकता है। क्या कह सकता है? बिल ऑफ एक्सचेंज मे डिनाई
डिनाई क्या कर सकता है, द बिल वॉज रियली ड्रॉन बाय द पर्सन बाय हुम इट प्रपोज टू हैव बीन ड्रॉन, कि वो ये डिनाई कर सकता है कि जिसने ड्रॉ किया, कहा जा रहा है उसने वो ड्रॉ नहीं किया बल्कि कोई और पर्सन ने ड्रॉ किया, इसको वो डिनाई कर सकता है, लेकिन टाइटल को डिनाई नहीं कर सकता। एक्सप्लेनेशन सेकंड, इफ अ बेली डिलीवर्स द गुड्स बेल्ड टू अ पर्सन either other than the bailor, he may prove that such person had a right to them as against the bailor। अगर बेली ने अदर देन बेलर को अगर वो किया तो उस सिचुएशन में वो जो बेली है वो ये प्रूव कर सकता है कि जिसको उसने डिलीवर किया प्रॉपर्टी, उसका उस प्रॉपर्टी में राइट था, इस तरीके से। तो ये सेक्शन 123 कलकत्ता क्रेडिट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस प्रिंस पीटर एंड ग्रीस। इट हैज बीन हेल्ड दैट वेयर ऑटोमोबाइल गैरेज रिसीव्ड अ कार फॉर रिपेयर्स, यहां पर ऑटोमोबाइल गैरेज ने कार को रिपेयर करने के लिए रिसीव किया। द गैरेज ओनर इज स्टॉप फ्रॉम चैलेंजिंग द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुम द कार इज रिसीव्ड। बाद में चल के यहां पर वो जो गैरेज ओनर था उसने, जिसने उसको कार देकर गया था, उसके टाइटल को ही चैलेंज किया। उसने ये कहा कि ये कार का ओनर है ही नहीं। जब कार का ओनर नहीं था तो वो कार रिपेयर के लिए उसने रिसीव कैसा किया? तो यहां पर गैरेज ओनर को स्टॉप किया गया, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉप लागू हुआ कि एक बार तुमने कार उससे एक्सेप्ट किए तो उसके टाइटल को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल सेक्शन 121 टू 123। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।